हेलो एवरीबॉडी। आस्क ब्रिजेश वेल शो के आज के इस लाइव में मैं आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो टॉपिक है आप देख रहे हैं नीचे कैप्शन में अपडेटर सर्विसेज का जो आईपीओ आज शुरू हुआ है उसके बारे में हम आज के इस लाइव में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट कि आईपीओ क्यों आ रहा है, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, वो बिजनेस कैसे यूज़ करने वाले और बिजनेस की पास परफॉर्मेंस और आईपीओ के पैसे को यूज़ करते हुए उसको आगे कैसे वो ग्रो कर सकते हैं उसके बारे में आज की इस लाइव में हम बात करने वाला है। तो चलिए ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए चलिए डिस्कस करना चलते हैं अपडेटर सर्विसेज के आईपीओ के बारे में। अगर हम आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ इज़ अ बुक बिल्ड प्रोसेस ऑफ 640 करोड़. The issue is combination of fresh issue of 1.33 crore shares aggregating 400 crores, मतलब 1.33 करोड़ shares issue किए जा रहे हैं to accumulate rupees 400 crores. And there is a second component of the IPO which is offer for sale, which is of 0.8 crore shares aggregating to rupees 240 crores. So out of this 600 crores जो पैसे 640 crores पैसे कंपनी इकट्ठा कर रही है उसमें से 400 करोड़ वो नई इक्विटी इशू कर रही है, मतलब दे विल बी रिसीविंग 400 crores in the company to be used for objectives which we are going to discuss in this live. And 240 crores are basically existing investor or promoters are selling their shares to exit, राइट, वो शेयर में से एग्जिट लेने के लिए, कंपनी में से एग्जिट लेने के लिए नहीं। ये सब्सक्रिप्शन आज शुरू हुआ है और सितंबर 27 को ख़त्म होने वाला है और इसकी जो अलॉटमेंट है वो अक्टूबर 4 को फाइनलाइज होने की पॉसिबिलिटीज़ है और उसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजेस पे होने वाली है और अक्टूबर 9 को वो लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटीज़ है। इसकी प्राइस बैंड जो तय की गई है डेट इज एट द लोअर एंड इट इज प्राइस बैंड इज ₹280 per share and at the higher end it is ₹300 per share and the lot size is 50 shares, which means the minimum amount required is around ₹15,000 at the higher end price band, right? IIFL Securities Limited, Motilal Oswal Investment Advisor Limited and SBI Capital Market Limited are the book running lead manager of the issue and Link Time India Private Limited is the registrar of the issue. ये बात की हमने इशू के बारे में। अब क्यों पैसे कंपनी इकट्ठा कर रही है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू? सो पहला है प्री पेमेंट एंड और रीपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोविंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने जो पुराने लोन लिए हुए उसको ये वो रीपे करना चाहती है। दूसरा है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको फंड्स के लिए फंड मुहैया करने के लिए आईपीओ ला रही है। तीसरा है परस्यूइंग इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव, मतलब वो अपनी लाइन के स्ट्रेटेजिकली जो अलाइनमेंट हो ऐसी कंपनीज एक्वायर करने के लिए पैसे इकट्ठा कर लिए। और चौथा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। सो दीज आर दी 4 ऑब्जेक्टिव्स व्हाई दिस मनी इज गेटिंग रेज यूजिंग दिस आईपीओ। अगर कंपनी की बात करें हम तो अपडेटर सर्विसेज वो इनकॉर्पोरेट की गई थी 1990 में और ये ऑफर करती है फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज and business support services. So they have two verticals: facility management services, which is also known as FMS, and business support services, which is known as BSS. The company operates in the business to business services space, offering spectrum of business services which are broadly classified into two segments. One is IFM and other services segment and BSS segment. In FM and other services segment, the company offers production support services, services, engineering services, washroom and feminine hygiene, warehouse management, and general staffing and more. In the business services segment, the company offers audit and assurance services through subsidiary Matrix. UDS also offer employee background verification check services, airport and ground handling services, sales enablement services, more through its subsidiaries. So as of June 30, 2023, the company has 2,797 customers across various sectors, including certain global and Indian customers such as Procter and Gamble Home Products Limited, Aditya Birla Fashion and Retail Limited, Microsoft, Hyundai Motor India Limited, and Saint Gobain India Private Limited, and more. The company is a pan-India player with a widespread network consisting of 4,331 locations, excluding staffing locations, managed from
to 129 point of presence with 116 offices situated in India and 13 offices situated overseas as of June 30, 2023. तो ये बिजनेस के बारे में बात हुई कि वो फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विस और बिजनेस सपोर्ट सर्विस में कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो it is India's second largest player in the facilities management services market, contributing more than 70% of the revenue in the financial year 23. So facilities management services company की 70% revenue FY23 के रिजल्ट के हिसाब से है। Within the business services segments, its subsidiary B Matrix holds 19.2 and 5.4% market share FY23 in audit and assurance and employee background verification services respectively, which means उनकी जो ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज है उसमें उसका 90.2% मार्केट शेयर है एंड एम्प्लॉय बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विसेज में 5.4% मार्केट शेयर है। It has long-standing relationship with over 10 years with prominent clients such as Hyundai, Saint-Gobain, and Procter and Gamble as of June 2023. So these are the strengths of the company. अगर weaknesses के बारे में बात करें हम weaknesses देखने जाए तो उसके जो ट्रेड रिसीवेबल्स है डेट इज अराउंड 35% ऑफ द टोटल एसेट्स इन FY23, विच मीन्स जो पैसे आने बाकी है ट्रेडिंग अपने क्लाइंट से, thus any uncertainty concerning default or any delay in payment can impact business's financial performance. It has a very high attrition rate of 78% in FY23, मतलब 78% जो उनके एम्प्लॉयज है वो जॉब छोड़ के जा चुके हैं FY23 उनको रिप्लेसमेंट लाना पड़ा। The company has primarily grown through acquisitions. While it has not encountered significant hurdles, an overly ambitious investment could trouble the company. तो अभी तक की जो उनकी उन्होंने ग्रोथ एक्वायर की है वो एक्विजिशंस के थ्रू है। अभी तक तो कोई दिक्कत उनको नहीं हुई, बट अगर वो अपनी कैलकुलेशन में गलत हो जाते हैं तो इट माइट ट्रबल दी कंपनी। रिस्क फैक्टर देखें कंपनी के तो पहला जो है रिस्क फैक्टर उसका, तो कंपनी प्रपोजेस टू यूटिलाइज अ पोर्शन ऑफ नेट प्रोसीड्स टू अंडरटेक एक्विजिशंस फॉर विच टारगेट्स हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड। मतलब क्या कंपनी खरीदेंगे, कौन सी खरीदेंगे वो आइडेंटिफाई किया नहीं गया है और फिर पैसे इकट्ठा कर रही है। सो इट्स एबिलिटी टू कंप्लीट सच ट्रांजैक्शन may adversely affect competitiveness and growth prospectus. दूसरा अगर रिस्क फैक्टर देखें, there are outstanding legal proceedings involving company, its promoters, its subsidiaries and directors. Any adverse decision in such proceedings may render company liable to liabilities and penalties and may adversely affect business results of operations and cash flows and reputation. सो ये लीगल प्रोसीडिंग्स कंपनी के लिए हार्मफुल हो सकता है अगर एडवर्स कुछ डिसीजन आए। तीसरा ये है कि कंपनी की बहुत सारी जो प्रोमोटर की और सब्सिडरी कंपनीज है, मेंबर की प्रोमोटर ग्रुप के मेंबर की कंपनी, वो सेम बिजनेस लाइन में जिस बिजनेस लाइन में ये कंपनी है, मतलब देयर इज अ सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कॉमन बिजनेस ऑब्जेक्ट्स कंपनी के जो है और कंपनी के प्रमोटर के और उनकी सब्सिडरीज के हैं, सो यू नीड टू लुक इनटू इट कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली सिचुएशन है तो वुड यू prefer to invest into the money in this company or not. अगर फाइनेंशियल देखें, लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन विथ यू टू अंडरस्टैंड द फाइनेंसेस बेटर। तो आप देख सकते हैं कि उनकी 31 मार्च 2021 की उनकी रेवेन्यू थी 1216.35 करोड़, तो 31 मार्च 2023 में बढ़ के हो चुकी है 2112 करोड़ .09 रुपीज़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, 31 मार्च को जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 2021 में वो 47.56 करोड़ था और 31 मार्च 2023 को वो कम होकर 34.61 करोड़ हो चुका है। उनकी नेटवर्थ जो 280.26 करोड़ थी वो 31 मार्च 2023 में 380.84 करोड़ हो चुकी है और उनके लॉन्स है वो 11.61 करोड़ थे 31 मार्च 2021 को, वो 31 मार्च 2023 को बढ़ के हो चुके हैं 176.5 करोड़। अब देख सकते हैं कि बिजनेस इतना एग्रेसिवली ग्रो नहीं हो रहा है। अगर हम पीयर से कंपैरिजन करें, इस तरह की बिजनेस सर्विसेज या फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की बात करें, स्टाफिंग सर्विसेज की, तो क्वेस्ट कॉर्प एसआईएस और टीम लीज उनके आप देख सकते हैं कि वो सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है। तो अपडेटर की जो ईपीएस है डेट इज अराउंड 6.77 और क्वेस्ट की 15.16, एसआईएस की
65.64 एंड टीम लिस्ट की 65.12 है। एनएवी देखें तो अपडेटर की 71.93 है, क्वेस कॉरपोरेशन की 173.30 है, एसआईएस की 160.11 है और टीम लिस्ट की 472.38 है। अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखने जाए तो क्वेस कॉरपोरेशन की 28.38 ईपीएस है, प्राइस टू अर्निंग है, एसआईएस की 19.74, टीम लिस्ट की 40.94। अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने जाए तो लिस्टेड कंपनी में से जो कंपनी है क्वेस कॉरपोरेशन, उसके नेटवर्थ से अपडेटर का नेट रिटर्न ऑन नेटवर्थ ज़्यादा है, बट बाकी की जो दो लिस्टेड है एसआईएस और टीम लीज, उनकी रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपडेटर सर्विसेज से बेहतर है। तो चलिए हम इसकी एनालिसिस को हम कंक्लूड करने की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो डेटा है उसको अगर क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए तो अपडेटेड सर्विसेज 3 years एवरेज आरओई is 13.8% and average return on capital employed is 19% respectively. It also reported positive cash flow from operations in the last 3 financial years. However, the trade receivables constitute around 35% of its total assets in FY23. सो उनके 35% जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स है वो उन्हीं टोटल एसेट के 35% जो पैसे लेने बाकी है। अगर ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी की टॉप लाइन 22.6 एंड 41.5% ग्रोथ हुई है ड्यूरिंग FY22 एंड FY23 respectively, mainly due to service demand. Moreover, in the last 2 years, the company acquired a majority stake in Denave India, 54% of FY22, Athena BPO, 57% in FY23, contributing to its revenue, and BPO 57% in the FY23, further contributing to its growth. अगर हम वैल्यूएशन के बारे में बात करें, the stock has a price to earning ratio of around 50.59% at the higher end और price to book value is 2.6 times respectively. So अगर उसकी peer के साथ में कंपेरिजन करें, उसकी मीडियन ऑन एवरेज आ रही है 29.9 as price to earning and price to book 3.6%. आप देख सकते हैं कि so far as price to earning is concerned, it is aggressively priced, which means मार्केट में जो अवेलेबल कंपनी है इस तरह की उसकी जो प्राइसिंग है उससे थोड़ी एग्रेसिवली की गई है। चलिए कंक्लूड करते हैं आईपीओ के एनालिसिस को। आउटसोर्सिंग वेरियस नॉन कोर बिजनेस एक्टिविटी कंपनीज टू थर्ड पार्टी इज रैपिडली ग्रोइंग। The main aim is to optimize the cost, free up internal resources, and focus on core operations. This will act as a significant driver growth for the integrated facilities management and business support service industry and help the company scale up further. Additionally, an increasing preference towards a safe, clean, and secure environment further support soft, that is housekeeping and disinfection, etc., and hygiene services, air fresheners, washroom hygiene solution, etc. However, the business must monitor its high trade receivables and an aggressive organic growth strategy. तो ओवरऑल हम देखने जाए तो एग्रेसिवली प्राइस टू अर्निंग बेस पे एग्रेसिवली प्राइस है, बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, बट आगे की जो ग्रोथ है, ये जो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं वो आगे ग्रोथ कंपनी और कंपनीज जो इस फील्ड में उसको एक्वायर करके ग्रोथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ टारगेट किया जा रहा है, which may not work out because it's not an organic growth for which they are acquiring the reason. तो ये सारी चीज़ें देखते हुए you will have to decide whether you should invest into Updater Services IPO or not, right? So I hope आज की ये जो लाइव थी छोटी सी अपडेटर सर्विसेज के आईपीओ की एनालिटिक्स के बारे में, वो आपको whether you should invest into it or not उसकी डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। इफ़ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी, आप अच्छे से इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, पैसे को मैनेज कैसे कर सकते हैं, आप अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में अगर आप अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं, आई गो टू यूट्यूब चैनल, तो आप उसको क्लिक करके उसकी ब्लैक बेल आइकन को रिसीव कर सकते हैं। मेरी चैनल का नाम है प्लैनेट वेल्थ विद फाइनेंशियल फ्रीडम। I'm also having writing blogs on the planetwealth.in/blogs. You can also listen to my podcast on the leading podcasting platforms such as Spotify, etc. You can join me. You can like my Facebook page, which is a Planet Wealth. Or most ideal thing to do is to join my financial well-being group on the Facebook and send WhatsApp message on 93281900022
ऐड मी और आपका नाम लिख के एक मैसेज भेज दीजिए, सो दैट आई कैन ऐड यू इन माय फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप. In through this broadcast group, I normally share this kind of content so that members of the group can improve their financial knowledge. But you will have to save this number 9328190022 as plan at 12th. और ताकि, क्योंकि ब्रॉडकास्ट मैसेज की एक रिक्वायरमेंट है कि सेंडर का नंबर आपके मोबाइल में स्टोर होना चाहिए. So if I add you in my broadcast group and if you want to receive, you will have to save this number from which I am doing the broadcast. So thank you for joining this video. If you have any questions, आप comment में पूछ सकते हैं. I'll be more than happy to answer questions. और अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड भी आपकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. I'll more than happy to answer your questions if you have any. Right? So चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और मिलते हैं इसी तरीके की एक लाइव में जहाँ पे मैं एक और इन्वेस्टिंग और पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट की इशू लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा. थैंक यू, बाय बाय.